Hi guys, good evening. We'll wait couple of minutes for others to join in. We'll start in a while. Yeah, I think most of the students have joined in. Let me just quickly share my screen. Okay, so couple of doubts and queries from just a second. Where did the chat window go? Yep. Okay, so there is a doubt from Anugeetika that she has a doubt in reciprocal law. Okay, we'll discuss that. Then Ravi, are you going to discuss the assignment that you have given? Well, I am going to share a video explanation with you. Okay, first I will want you to go through that video explanation of those solutions. I'll share it tonight itself. Okay, and based on that, अगर आपको फिर भी कुछ extra doubt रहेंगे, तो definitely you can reach out to me. We'll discuss it. Then आयुर का डाउट है यू डिडंट गेट द मास मोल रिलेशनशिप सम्स राइट. सो अभी हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट क्लास में प्रैक्टिस नहीं करा था ना. मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा था एंड आई नीड टू एक्चुअली do certain questions with you so that you learn the approach of how to work on those questions. Once we are able to understand that approach, then I think Ayur, you will be in a better position to solve the booklet questions. So aaj patience rakho. Let me do those questions with you and then फिर मैं आपको booklet से बताऊंगा which questions and all you can practice. ठीक है. All right, so let me take a quick recap of what we did in the last class first. ठीक है. Okay, so last class में हम लोगों ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक स्टेटमेंट पढ़ा था. नाउ आई एम टेकिंग अ पॉज एट इट बिकॉज अनुगीतिका मेंशन कि उसको कुछ डाउट है यहाँ पे. तो कैन यू लेट मी नो व्हाट द डाउट इज? हेलो सर. हाँ बोलो.
सॉरी, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है कि द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, मतलब 12:32 हाँ is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. मतलब राइट यहाँ पे जो 12:60 नहीं, मतलब 12:64 है, हाँ वो मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो 24:64 होना चाहिए ना. नहीं दैट आई थिंक आपने गलत वे में रीड कर लिया. दिस इज द रेशियो जो आ रहा है 12:32 when they are combining together, ठीक है, in a standalone compound. And this 12:64 is the ratio which is coming when they are combining with the fixed mass of the third element, ठीक है. तो what it is saying is, the statement is saying is कि ये दोनों या तो सेम होने चाहिए, ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो अगर मैं इनका ही रेशियो लूं तो इट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो और सिंपल होल नंबर मल्टीपल. अच्छा, वो कंबाइंड रेशियो. हाँ, सो यहाँ पर आइदर, सो यहाँ पर देखना रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे कंबाइन, ठीक है, जब वो कंबाइन सेपरेटली होकर, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or a whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. So this is they are combining with each other, and this is what the first statement told you, the ratio of the masses in which they combine with the fixed mass of the third element. ये दोनों या तो सेम होंगे या इनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा. ओके सर. ठीक है, ओके. तो एनीवेज या कमिंग बैक क्विकली, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये एक ट्रिक सीखा था डिफरेंट डिफरेंट लॉज के साथ में डील करने के लिए. देन आई हैड टोल्ड यू कि हम इस चैप्टर की स्टार्ट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, and that is where we spend some time into understanding these definitions of AMU and mole का हम लोगों ने पहले पढ़ा था, and उनके बीच का लिंक भी समझा था. that was quite important. Then there were other definitions like atomic mass, relative atomic mass या gram atomic mass. वो क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, that is something which again we discussed thoroughly. देन हम मॉलिक्यूल्स पे आए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रीड करना आना चाहिए, उनके एसोसिएटेड कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है. अच्छा, देन मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आना चाहिए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सम मोर टर्म्स लाइक ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन. उनका क्या मीनिंग होगा, इनका भी एप्लीकेशन आपके सामने आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस रीड करेंगे, तब मैं आई विल अगेन रिविजिट दीज डेफिनेशंस. देन वी हैड दिस मास मोल रिलेशनशिप, ठीक है, एंड इसमें मैंने आपको बोला था that we have to be slightly cautious about applying this mass mole relationship depending upon the type of the substance that we are going to apply on it. If we have a substance that exists as a collection of atoms, then we use the formula on the left hand side, and if the substance is in the form of collection of molecules, then we apply the formula on the right hand side. And I did a couple of examples to demonstrate that. Then I did one important example जिसमें मैंने दिया मास आपको एक मॉलिक्यूल का था, एंड मैंने इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है. तो दैट इज वेयर आई highlighted very clearly that you should not apply the formula blindly. Sometimes you will have to use a combination of formula and logic to work with determining how to solve the question, ठीक है. एंड इसमें मैं एक ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर पाया था, तो थरो प्रैक्टिस नहीं हो पाई, ठीक है. Now let me take couple of more questions on the same lines so that we are on the same page when it comes to applying the mass mole relationship, ठीक है. So let me take up some more problems and we'll continue with that only. So let's start with today's discussion. I'll keep the heading as mass mole relationship only.
Now let me start with an example only. Okay, let's start with an example. Let's take a simple example similar to what we did in the last class. Determine the number of hydrogen atom in 8 grams of methane. That's the question. Determine the number of hydrogen atom in 8 grams of methane. I'll give you some time to take an attempt. आया किसी का आंसर? All right, so I've got a couple of answers. अनुगीतिका का सही है, सानिध्य का भी सही है, उत्सव नहीं आपका सही नहीं है, रुद्र आपका सही है, राइट. सो कैसे है अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है. एंड यू नो ट्रस्ट मी दैट in this chapter particularly what happens is, and this is a common observation across years, some students are able to catch fast and are able to answer faster. Some students will take their own time, ठीक है. And lot of times I have seen, because ये पहला chapter है, तो कई बार students are kind of, you know, हम लोग जल्दी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, like we are taking a lot of time, and that is completely fine because the concepts are pretty easy. It is that सबका अपना अपना एक लर्निंग कर्व होता है, एक अपना एक लर्निंग स्पीड होता है, ठीक है. तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके कर रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन इट. धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है. आप अपने सीनियर बैच के स्टूडेंट से बात करके देखना, दे विल ऑल अग्री टू दिस पॉइंट कि हाँ स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट थोड़ा सा लगा था, बट एज यू नो टाइम प्रोग्रेसेस इट बिकेम रियली रियली इजी. नाउ let's understand how do we work on this question. So observe करना. यहाँ पर अब आपको मास ऑफ CH4 दिया गया है, ठीक है. मास ऑफ CH4 मीथेन होता है जिसका आपको मास दिया हुआ है 8 grams. Now let me think what is the formula that I can apply. So the formula which comes to my mind is that mole of CH4 molecules would be mass divided by molecular weight, so 8 divided by 16. So that will be my number of or you can say moles of CH4 molecules. अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ CH4 molecules कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा दैट अगर 8/16 यानी कि हाफ मोल है, तो उसको आप एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको, राइट. अब क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं पूछा है, ठीक है. तो यहां तक तो आपको फॉर्मूला ने हेल्प कर दिया, ठीक है. अब इसके आगे आपको लॉजिक लगेगा. लॉजिक कैसा है कि पूछा आपसे हाइड्रोजन एटम के बारे में. सो इफ आई look at the formula of CH4 molecule, what I understand is that one molecule will have 4 atoms. So if I have 1/2 into Na molecules, then how many atoms will be there? So I just do a crisscross multiply and I'll get my answer as 2Na.
atoms, right? You can also write 2 into 6.02 into 10 raised to the power of 23. That is also the correct answer. So अब आपने इसमें कहाँ पर गड़बड़ करी वो भी आइडेंटिफाई करना. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, दैट यू आइडेंटिफाई वेयर केयरलेस मिस्टेक वाज मेड, व्हाट वाज इट दैट वी स्लिप्ड ऑन टू. एंड इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करते जाओगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी. ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 18 ml of water and density of water आपको दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml है. ठीक है, अब आपको नेचुरली समझ में आ रहा होगा कि वापस भी इसमें फॉर्मूला एंड लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा. इट कांट बी समथिंग जहां पे आप बस ब्लाइंडली लगा दोगे फॉर्मूला. राइट, अनुगीतिका का आंसर सही है. इट इज 10 Na. बाकी लोग भी करो. आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मोर सेकेंड्स. सोचो. ठीक है, गिव अप मत मारो जल्दी. ठीक है, आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू विल ऑल नो एंड अंडरस्टैंड दैट ऐसे पैसिवली मत बैठ जाना कि क्वेश्चन पढ़ा और एकदम से क्लिक नहीं हुआ तो आप बैठ गए कि चलो सर तो करके दिखाई देंगे. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट फ्लाई. प्लीज अंडरस्टैंड, अब जब आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो धीरे धीरे ना सिचुएशंस थोड़ी चेंज होती जाएंगी. लाइक you will have to struggle a bit with the questions. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे एंड क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन ही याद होगा कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये करना है और अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, वो रट्टा काम करेगा ही नहीं पहले जैसे करता था स्कूल में. यू विल हैव टू रियली थिंक थ्रू, अप्रोच बनाना पड़ेगा खुद का. राइट, सानिध्य आपका भी सही है. नहीं उत्सव, आपने कुछ केयरलेस मिस्टेक करा है, देखो आप. सो इसमें आप वापस से ऑब्जर्व करना, देखो क्या है. वॉल्यूम ऑफ H2O आपको दिया हुआ है 18 ml एंड सिंस उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, so we can determine that the mass of H2O given is volume into density, that is 18 grams. ठीक है, नाउ अब मुझे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो मुझे मोल्स ऑफ H2O मिल जाएंगे. मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स 1 आ जाएंगे एंड इससे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल मेरे 1 into Na आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला हेल्प कर गया. ठीक है, बट अभी इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं. ठीक है, देयर इज नो सच फॉर्मूला. तो उसके बाद क्या लगेगा, अब लॉजिक. तो लॉजिक के बारे में हम सोचेंगे कि यार इंफॉर्मेशन दी H2O के बारे में है और पूछा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इनके बीच में क्या लॉजिक है. अगर मैं एक मॉलिक्यूल H2O का ऑब्जर्व करूंगा
तो उसके अंदर 1 + 1 + 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 1 each from hydrogen atom and 8 in the oxygen atom. So if I have Na molecules, then how many electrons would be there? So that's it. My answer came that it will be 10 Na electrons. ये समझ में आया? ठीक है, let me zoom out a bit. All right. So अब इसी चीज को, ठीक है, थोड़ा सा और विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, व्हाट वी यूज इज अ डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम और यू कैन से विजुअल aid for mass mole relationship. So इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना. मान लो आपको मास इन ग्राम्स मिल जाता है. ठीक है, तो क्या उससे आप मोल्स निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? अगर मास से मोल्स निकालने हैं तो व्हाट यू विल डू इज यू विल आइदर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, और सॉरी डिवाइड बाय, यू विल आइदर divide by atomic weight or you will divide by molecular weight. ठीक है, अगर आपको मोल्स मिल गए, ठीक है, एंड मोल्स मिलने के बाद में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और समटाइम्स इट वर्क्स फॉर एटम्स ऑल्सो. अगर सब्सटेंस एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसे होगा? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स बाय Avogadro's constant Na, है ना. आप रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हो. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो यू डिवाइड देम बाय Na, एंड अगर आपको मान लो मोल्स दे रखे हैं तो यू मल्टीप्लाई इट बाय एटॉमिक वेट और यू मल्टीप्लाई इट बाय मॉलिक्यूलर वेट टू गेट द मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, अच्छा रितेश, आपने हैंड रेज किया, वाज देयर अ क्वेश्चन और या गलती से क्लिक हो गया? ओके, ठीक है. नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ विजुअल हेल्प. इसमें कैसा हो सकता है, समटाइम्स इन तीनों में से जो भी सर्कल में मैंने बना रखा है, इन तीनों में से कोई सा भी एक चीज मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो आप बाकी के चीजें डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, सो होगा ये कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अभी, तो उसमें होगा क्या कि इस डायग्राम में से कुछ अननोन रहेगा और कुछ नोन रहेगा. तो वो नोन से अननोन को कैसे लिंक करना है, दैट इज व्हाट दिस डायग्राम इज हेल्पिंग यू विद. ठीक है, मे बी आई गिव यू कपल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विच you will get a better idea of how to work on it. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. Let me give an example. Determine the हाँ, अभी आयुर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ में ही और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ. ठीक है, द मोर examples I take, the better it will be for you to understand. ठीक है, so determine the
number of moles of oxygen atom in 98 grams H2SO4. ठीक है, ये आप ट्राई करो. सानिध्य आपका आंसर सही है, जस्ट 4. हाँ राइट, नॉट 4 Na, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना. राइट, सो यहाँ पर कैसा हुआ आप नोटिस करोगे, यू नो इन द डायग्राम दैट वी हैव, अभी कैसा हो रहा है, मास दिया हुआ है एंड आपसे मोल्स पूछे हैं, तो बस आपको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, दैट्स इट. ठीक है, चाहिए तो मैं इसका एक शॉर्ट वर्जन एक ऐसे कॉपी करके भी रखता हूँ. ठीक है, so 4 would be the correct answer, right? Mass of H2SO4 ये दिया हुआ है 98 ग्राम्स. ठीक है, मोल्स क्या हो जाएंगे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो ये आपका आ जाएगा 98 डिवाइड बाय 98, तो you'll get 1 मोल. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट H2SO4 का मॉलिक्यूल एंड लुक एट ऑक्सीजन इनसाइड इट, तो आपको दिखेगा कि अगर ये एक मॉलिक्यूल में देख रहा हूँ तो इसमें 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो अगर ये 1 मोल होगा तो इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे, तो यू विल गेट योर आंसर एज 4. ठीक है, फॉर्मूला प्लस लॉजिक. अच्छा, थोड़ा सा अब मैं इसको और डिफरेंट तरीके से पूछता हूँ. ठीक है, लेट्स सी, डिटरमाइन द mass in grams of you can say determine the mass in grams of 4 atoms of helium. नहीं रुद्र, गड़बड़ हो गया. थोड़ा सोचो ना, 4 एटम का इतना ज्यादा मास होगा. हाँ राइट, अनुगीतिका का आंसर सही है. तो यहाँ पर अब आप ऐसे सोच सकते हो. ठीक है, मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ. ठीक है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे. मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 AMU. ठीक है, तो इसका मतलब, क्योंकि एटॉमिक मास होता है ना हीलियम का 4, तो अब इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ 4 एटम्स ऑफ हीलियम वुड बी हाउ मच,
16 AMU, बट आपसे आंसर ग्राम में पूछा है, ठीक है। अभी यू विल से सिंस 1 AMU is equal to 1.67 into 10 की power minus 24 grams, so you will say that my answer of mass of 4 atoms of helium would be 16 into 1.67 into 10 raised to the power of minus 24 grams. आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका कैसा हो गया, आई विल गो विद माई डायग्राम, ठीक है। मेरा डायग्राम मुझे कैसा बता रहा है, अगर मैं मेरा डायग्राम यहाँ पर पुट करके देखूं तो ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसमें कैसा दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्व करना। उप्स, इस डायग्राम में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और मुझसे मास पूछा जा रहा है, तो आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। सो व्हाट आई हैव इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is 4, number of molecules or number of atoms you can say. In this case what we have is number of atoms which is 4. तो इससे number of moles कितने हो गए, 4 डिवाइड बाय Na, ठीक है। अब मोल से मास कैसे आ जाएगा, मास विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सो 4 अपॉन Na इनटू एटॉमिक मास कितना, और मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट बोल रहे हैं यहाँ पर, एटॉमिक वेट कितना होगा हीलियम का, 4 रहेगा, तो ये आपका आ गया 16 अपॉन Na ग्राम्स, विच इज द सेम थिंग बिकॉज 1 अपॉन Na, ये जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है, दैट इज एक्चुअली 16, एंड ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो एक एक डाउट डिस्कस करते हैं। रुद्र का डाउट है, इज दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, क्या व्हाट सर, आर दिस क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ग्राम एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट डिफरेंट? नहीं रुद्र, आपका मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। इसमें कैसा हुआ, एक तो मैंने देखो यहाँ पर एक जगह तो मैंने क्या करा, डेफिनेशन यूज करी, दिस वुड बी डेफिनेशन बेस्ड सॉल्यूशन, की डेफिनेशन क्या होती है एटॉमिक मास की, वो यूज करी मैंने, ठीक है। कि एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इट इज द मास ऑफ वन एटम, सो हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है, 4 AMU होता है, तो दैट इज व्हाट इट मींस, दैट मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज 4 AMU। तो अगर 4 एटम्स का पूछा है तो मेरा आंसर कितना होगा, 16 AMU, राइट। बट क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नहीं हमें ग्राम्स में चाहिए, तो आई हैव टू जस्ट कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स, एंड आई नो द कन्वर्जन बिटवीन द टू, ठीक है। तो बस मैंने सब्स्टिट्यूट करा और मेरा आंसर आ गया, दिस इज वन वे। The other method that I have shown here is formula based, ठीक है। इसमें मैं क्या करता जा रहा हूँ, इस डायग्राम को यूज करने का कोशिश करता जा रहा हूँ, फोर्सफुली यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज डेफिनेशन बेस्ड तरीका ज्यादा इजी है, but just forcefully I am trying to use this formula based method, so that this formula based method becomes very clear to you. तो इसमें मुझे कैसा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और मास पूछा हुआ है, तो आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मास इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो वही मैंने करा, मॉलिक्यूल्स से मोल्स गया कैसे, आई डिवाइडेड बाय Na, एंड देन मोल्स से मास गया कैसे गया, आई मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक वेट। Why did I choose atomic weight? Because helium exists in form of atoms only. Had it been something that existed in form of molecules, I would have multiplied by molecular weight. ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस तरीके ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे बुकलेट में, व्हेन आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, ठीक है।
अच्छा, एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू और आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. Determine the number of, you can say, determine the number of valence electron present in or let me change the question. Let me determine the charge in कूलॉम. नहीं, ये भी आपको कूलॉम का आता नहीं होगा कन्वर्जन, ठीक है. डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in 10 grams of helium. चलो इसका आंसर दे दो. हम्म. ओहो. So 10/4 into 2 into Na, 5 Na. 5 Na is the correct answer. ठीक है, अब इसमें नोटिस करना आप कैसे करोगे. अब इसमें वापस से आई विल लाइक टू यूज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला प्लस लॉजिक. ठीक है, यहां पर आपको एज आई सेड फॉर्मूला एंड लॉजिक दोनों का यूज करना पड़ेगा. अब फॉर्मूला कहां तक हेल्प करेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना. ये मेरा फॉर्मूला वाला था, ठीक है. लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर. Why isn't it shrinking in size anymore? Just a second, guys. Anyways, so इसमें अब आप नोटिस करो मास ऑफ हीलियम आपको दिया गया है 10 grams. So if you look at your diagram again, ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको ऊपर कराया था, तो उसमें
the only thing that is given to you is mass. ठीक है. Now rest of the things, number of atoms या molecules, ये तो पूछा भी नहीं है हमसे. But what we can do is we can at least go in a step by step manner and figure out the number of atoms or molecules and then maybe apply logic. ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट में अब मैं क्या करूंगा, मास ऑफ हीलियम से मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लूंगा. मोल्स ऑफ हीलियम कितने आएंगे मेरे पास में, राइट. आई विल जस्ट क्विकली डिवाइड so as you can see, I will quickly divide this mass by the atomic mass. Atomic mass of helium is 4. ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया that I have got 2.5 or I can let it be just 10 by 4 moles of helium. Now number of helium atoms इससे मेरे कितने आ जाएंगे, 10 by 4 into Na. ठीक है, तो इतना पार्ट मेरा फॉर्मूला ड्रिवन हो गया. ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, तो उसके बाद मुझे अब लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, राइट. लॉजिक कैसे लगेगा, that if you look at a helium atom, then how many protons are there in it? In one atom there are 2 protons. So if you have 10 by 4 into Na atoms, then how many protons will be there, and you do a crisscross multiply, you will get the answer as 5 Na. That is what your answer will be. So वापस से let me zoom out so that you can again understand how we are approaching these questions. Formula plus logic. And trust me, मतलब जब तक आप खुद से तसल्ली से बैठ के एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस इस चीज के अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द अप्रोच. एंड मैं खुद आपके सामने भले ही 50 एग्जाम्पल सॉल्व करके रख दूं, बट अनटिल अनलेस यू डू द वर्क, ठीक है, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक अप्रोच आपको क्लियर नहीं होगा. सो ठीक है, डोंट बी ऑफ दिस हैबिट दैट आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या लिखा जा रहा है सामने स्क्रीन पर. यू शुड राइट एज मच एज यू कैन, टेक अटेम्प्ट्स. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस और हो सकते हैं एंड मैं आपको होमवर्क में दूंगा. इनफैक्ट लेट मी मेंशन द होमवर्क एज वेल. ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में होमवर्क मेंशन करके दे देता हूं ताकि इट इज एब्सोल्युटली क्लियर विद ईच एंड एवरीवन. ठीक है, होमवर्क यहाँ पर ऑब्जर्व करना बुकलेट में से ही. ठीक है, फ्रॉम बुकलेट. So there is this FBO section. FBO stands for Foundation Builder Objective. ठीक है, आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा, आई थिंक पेज 127 और 128, आई थिंक इस पे कहीं पे रहेगा बुकलेट में. ठीक है, एंड इसमें ट्राई 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, एक्सेप्ट सम ऑफ देम जिनका भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है. ठीक है, सो डू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन 5, 6, 7, 11, 13, 16 एंड 19, इनको स्किप कर देना. ठीक है, एंड देन जो FBS सेक्शन है, ठीक है, ये आई थिंक अराउंड पेज 131 या 132 में होगा.
ठीक है, इसमें 1 से लेकर 10 इतने क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। एंड इनके आंसर्स बुकलेट में चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, ठीक है। सो आंसर्स आर देयर एट द एंड, आंसर्स एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो आप मैच भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर आपका आंसर गड़बड़ हो रहा है तो यू कैन टेक अनदर अटेम्प्ट, री अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। बट अगर तब भी नहीं आ पा रहे तो डेफिनेटली देन वी कैन डिस्कस दोज डाउट्स, ठीक है। एंड आई विल बी शेयरिंग explanations of these questions as well, ठीक है। All right, so now I think we can move towards another subtopic, ठीक है। हम इसमें अब थोड़ा सा मास मोल रिलेशनशिप के आगे जाते हैं, तो उसमें you shall be able to understand things better. So let me come to the concept of gases, ठीक है, or you can say some important results for gases. इसमें the thing is that we are not going to go into a lot of details into what a gas is and what are its properties. So I am kind of going to put a disclaimer here up front, क्योंकि आपको अभी मैं naturally if I start saying some words, PV is equal to nRT, so you will be like what does P, what does R, what does it mean, like where did it come from, so you will have a lot of doubts, ठीक है। बट अभी यहाँ पर समझना that I am putting a disclaimer here that details are to be discussed in another chapter called as gaseous state. There is an entire chapter dedicated to the study of gases. अभी हम लोग इसलिए डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी what I will start with is called as an ideal gas equation, ठीक है। ideal gas equation, ठीक है, it is an equation that relates various parameters or you can say properties of gas, ठीक है। the relationship is PV is equal to nRT, ठीक है। now अब इसमें मैं जितना हो सकता है बेसिक एक्सप्लेनेशन उतना देना शुरू करूंगा। P stands for pressure of gas, ठीक है। अब now you will definitely have a question that what do you mean by pressure of gas. तो कैसा होता है that if you have a gas contained inside a vessel, ठीक है, तो इसके atoms या molecules they constantly are in motion and they collide with the walls of vessel in which they are present in, and because of those collisions, ठीक है, there is force that is exerted, as a result of which a pressure is exerted on the walls. That pressure is what we are calling as the pressure of gas, ठीक है। then there is, ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ये सब मैं आपको गैसियस स्टेट चैप्टर में लिखाऊंगा, ठीक है। अभी जितना इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना ही नोट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। V stands for volume of gas, or you can say the volume of vessel in which the gas is present, ठीक है। then
N stands for number of moles. ठीक है, number of moles of gas. T stands for temperature. ठीक है, and this R is something which is something new for you. This R is called as gas constant. ठीक है, its value is same for all gases. ठीक है, but depends upon the units that we use in the formula. ठीक है, इसमें प्रेशर आप किस यूनिट में ले रहे हो, प्रेशर कैसे हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में भी मेजर होता है, बार में भी मेजर होता है, पास्कल में भी मेजर होता है. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं. तो कौन सी यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे उसके ऊपर आर का वैल्यू डिपेंड करता है. तो यहाँ पर मैं आपको दो कॉमन वैल्यूज ऑफ आर एंड द यूनिट्स यूज्ड विद देम वो बता देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना. ठीक है, दिस इज समथिंग which is important. It depends on the units. ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जर्व करना. अगर मैं कॉमन यूनिट्स में जाता हूं, ठीक है, कॉमन यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, दैट प्रेशर आई वुड टेक इन एटीएम. ठीक है, वॉल्यूम आई वुड टेक इन लीटर्स. ठीक है, moles I will take in mole, and temperature, ठीक है, I always take in Kelvin. ठीक है, आई होप दीज वर्ड्स आर फेमिलियर विद यू. ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स ही आपके लिए एलियन है. सो टेम्परेचर इज टू बी टेकन इन केल्विन. तो जो मेरा गैस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आर, इसका वैल्यू हम लोग लेंगे 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन. ठीक है, ये इसकी यूनिट्स होंगी. ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1/12. ठीक है, that is an approximation. It sometimes to be taken cautiously depending upon how the question is, how the options are. If options are दूर from each other, तो आप थोड़ा सा approximation लेकर calculations कर सकते हो. बट मान लो अगर सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, आपको सीधे टाइप करना है आंसर, तो उस केस में यू विल हैव टू डू मोर एक्यूरेट कैलकुलेशंस. ठीक है, so this is one set of units. Another is SI units. ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो अगर हम यूज करते हैं तो प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज पास्कल. ठीक है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब. मोल्स का ऐसा यूनिट मोल होता है. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है. तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314. ठीक है, न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से न्यूटन मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल. सो जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, समटाइम्स इट इज अप्रोक्सीमेटेड एज 25/3. ठीक है, फॉर इजियर कैलकुलेशंस, अगर हम ऐसा यूनिट्स में ये वैल्यूज ले रहे हैं तो. सो दिस इज समथिंग which will be important to you when you will be solving questions associated with gases. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है इस चीज को. किस तरीके से, यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करना. एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा. दिस इज लाइक अ statement that will help you simplify questions and calculations. मोलर वॉल्यूम, ठीक है, सम represented as ऐसे V और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट. It is the volume of 1 mole of gas under
standard temperature and pressure conditions. Standard temperature and pressure conditions. So this is in short also called as STP. ठीक है. Now what does a standard condition is? तो इसमें अब एक ओल्ड कन्वेंशन है और एक न्यू कन्वेंशन है, तो उसको आप दोनों को फॉलो करना. ठीक है. There is an old convention and there is a new convention. What did the old convention say? Old convention says that STP implies pressure is 1 atm, ठीक है, and temperature is 0 degree centigrade. ठीक है. Now if I use the formula PV is equal to nRT, ठीक है, pressure is 1, वॉल्यूम मुझे निकालना है, मोल्स 1 है क्योंकि मोलर वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, आर का वैल्यू 0.0821 यूज करेंगे एंड टेम्परेचर हमेशा केल्विन में. तो इससे मेरा Vm, I should say molar volume, Vm comes out to be 22.4 liters. ठीक है. अब ये कैसा था? ओल्ड डेफिनेशन था. ठीक है. जो नया डेफिनेशन है, व्हेन यू विल रीड एनसीईआरटी, तो उसमें क्या कर दिया है, प्रेशर जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो बोल दिया जा रहा है 1 बार एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर इज 0 degree centigrade. Now 1 bar is actually 1.01325, 0.987 atm. ठीक है. ये कन्वर्जन रहता है बार और एटीएम के बीच में. तो अगर मैं इस कन्वेंशन के हिसाब से वॉल्यूम निकालना चाहूंगा, तो ये वॉल्यूम मेरा आता है, ठीक है, जो ये वॉल्यूम आता है ये आता है 22.7 लीटर्स. ठीक है. सो दिस इज द न्यू कन्वेंशन. नाउ व्हाट यू विल नोटिस, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट in booklet old convention is used and sometimes referred as NTP, normal temperature pressure also. ठीक है. बुकलेट में अगर ऐसे कहीं पर आ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, या एसटीपी लिखा आ रहा है, तो बुकलेट में ये ओल्ड कन्वेंशन यूज हो रहा है. ठीक है. एंड एनसीईआरटी में आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में दे हैव एक्चुअली हाईलाइटेड, ठीक है, एनसीईआरटी में दे हैव नाउ ट्राइड टू यूज द न्यू कन्वेंशन. ठीक है. तो अब ऐसा चीज है, ध्यान से समझना, दिस इज एन एम्बिग्विटी, आई शुड नॉट से एम्बिग्विटी, इट इज समथिंग जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कभी ओल्ड फॉलो करें कभी न्यू फॉलो करें. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट you will find both of them quite commonly present in the textbooks. ठीक है. कई बुक्स में 22.4 लीटर माना जा रहा है, तो कई बुक्स में 22.7 माना जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वो बुक रिसेंटली अपडेट हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है.
तो अभी जैसे अपनी बुकलेट है, ठीक है, बुकलेट है या फिर टेस्ट पेपर्स जो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा या कुछ भी रहेगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि ओल्ड कन्वेंशन ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। मैं एसटीपी लिख दूंगा तो वो ओल्ड कन्वेंशन ही आ जाएगा, ठीक है। पर अभी ऑफ लेट कैसा होने लग गया एग्जाम्स में, जो पेपर डिजाइन करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, they also understand that this has become a confusion of sorts. So what they do is that instead of mentioning STP and all, they completely spell it out. They tell कि अच्छा इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, और अब आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। That is how they do. So that is what the observation is over the past couple of years, in fact more than a couple of years, that JEE में जे एडवांस का जब पेपर होता है तो उसमें अब वो लोग एसटीपी ये सब वर्ड यूज करते ही नहीं है, वो सीधे क्वेश्चन में ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि भाई आप ये प्रेशर और ये टेम्परेचर लो और सॉल्व करो, डोंट कंफ्यूज ऑन इट, ठीक है। तो अभी बुकलेट में आपको ये यूज करना है, ठीक है। बुकलेट के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इसको यूज करना रहेगा, ठीक है। एंड एग्जाम में आपको एक्चुअल एग्जाम जब होगा उसमें मेंशन करके आ जाएगा कि क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन टेक अ कॉल, ठीक है। नाउ अब based on it, let me take one or two questions, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। डिटरमाइन द वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर्स occupied by 12 grams of methane gas under STP कंडीशन, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पर अभी तो बोल रहा हूँ, बट मोर ऑफन अब हम ओल्ड कन्वेंशन पर ही चलते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? You can let it be in fractions also, I don't mind. I don't need you to spend effort into doing calculations and all. You can leave it be in fractions also, that's okay. So इसमें कैसा रहेगा? अब मास ऑफ CH4 आपको दिया हुआ है 12 ग्राम्स, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। तो इससे आपको मोल्स ऑफ CH4 मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ CH4 आपका आ जाएगा 12/16 और यू कैन से 3/4। अब आपने पढ़ा हुआ यहाँ पर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नोटिस करा था कि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP रहता है। तो अगर 3/4 मोल्स है तो कितना वॉल्यूम रहेगा? आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू 22.4 liters at STP, which if you do a quick calculation, so it becomes 5.6 into 3, that is 16.8 liters roughly, ठीक है। हाँ रवि, सही था आपका। तो अब इस चीज को आप लोग नोटिस करना, हम लोग अपने जो विजुअल था, डायग्राम था, उसमें कैसे एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करना।
ओके सो अब इसमें I can extend this diagram to another calculation जहाँ पे मुझे वॉल्यूम इन लीटर्स मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर मुझे मोल्स मिल गए तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई बाय 22.4 और अगर मुझे मान लो वॉल्यूम मिल गया आई विल डिवाइड बाय 22.4 टू गेट द मोल्स. ठीक है, सो ये मुझे वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है, फॉर गैसेस दे देगा. ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट दिस इज समथिंग एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी लगा रहे हो. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. जैसे अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ. ठीक है, लेट मी नो व्हाट वुड बी द आंसर टू इट. डिटरमाइन द मास ऑफ 33.6 liters of H2O at STP. ठीक है, ये ट्राई करो. हाँ, नहीं रावी, इट्स नॉट करेक्ट. All right, so we have some answers from Utsav and Sanidhya. Nope, आप सब लोगों ने सेम आंसर दिया है, रावी वाला ही. Okay, so what you guys have done is that you have jumped to conclusion. H2O at 0 degree centigrade 1 atm is not gaseous. ठीक है, so do not apply that formula. ठीक है, in fact thus the formula is not applicable. What is going to happen is that density of H2O is very close to 1 gram per ml. ठीक है, or you can say 1000 gram per liter. ठीक है,
or you can say actually 1 kg per liter. So this implies that mass of H2O will be volume into density 33.6 kg. That is actually a correct answer. ठीक है, तो वो होता है दैट फटाफट फॉर्मूला देखा और अप्लाई करना शुरू कर दिया, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा दैट यू कांट ब्लाइंडली अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट. ठीक है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट गैसेस के ऊपर ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, ओके. एक एग्जांपल चलो और डिस्कस करते हैं. Determine the molecular formula of sulfur vapor. ठीक है, if it is found to occupy a volume of 44.8 liters at NTP and weighs 512 grams. ठीक है, एंड आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन भी लिख दिए हैं. ठीक है, S2, S4, S6 या S8. ठीक है, आप मुझे आंसर करके बताओ. राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. S8 इज द करेक्ट आंसर. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? यही वाला टेबल, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. लेट मी जस्ट क्विकली टेक इट डाउन देयर. सो अब इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग ऑब्जर्व करना. इसमें अब हमें, आप ऑब्जर्व करोगे तो वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है. द अननोन इज एक्चुअली दिस एटॉमिक वेट. ठीक है, atomic weight, or you can say molecular weight. So once you get that, then you can see which option matches, right? So from volume, which has been given to you as 44.8 liters, what you can do is you can get the moles. Moles कितने आ जाएंगे? 44.8 divided by 22.4, which is 2. ठीक है, and mass is given to you as how much? 5112 grams. So from both of these you can get that the molecular weight is 512 divided by 2, that is 256 gram per mole, which matches with S8. That is your correct answer. ठीक है, all right. So
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक थोड़ा सा और ट्रिकी, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो। नाउ द स्टेटमेंट which I would like to add as a hint to this upcoming question is the above relationship, ठीक है? जो मैंने PV is equal to nRT लिखा या फिर जो volume of 1 mole of gas लिखा at STP, so the above relationship for gases is also applicable to a mixture of gas as well, is also applicable to a mixture of gases as well, ठीक है? तो इसमें कैसा हो गया, मतलब आपके पास मान लो एक 22.4 लीटर मिक्सचर है मीथेन और ईथेन का कंबाइंड, एक वेसल है 22.4 लीटर का एनटीपी कंडीशंस पे, और उसके अंदर मीथेन और ईथेन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा, टोटल मोल्स दोनों के मिला के 1 हो जाएंगे, ठीक है? लेट मी गिव वन एग्जांपल टू फर्दर reinforce this point. A 53 grams mixture of CH4 and C2H6 is found to occupy a volume of 44.8 liters at NTP. Determine the total number of carbon atoms in this sample. ठीक है, ये आप ट्राई करो। नहीं, not the correct answer, अनु।
नहीं रुद्र, आपका और अनु का आंसर सेम है बट दोनों का गलत है। मे बी यू गाइस आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। हैव यू जस्ट अज्यूम्ड कि दोनों का 1 1 मोल है? टोटल मोल 2 है, बट ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि दोनों का 1 1 मोल रहेगा। अगर आप 1 1 मोल अज्यूम कर रहे हो तो आप देखो मास 53 आएगा ही नहीं फिर। हाँ बिल्कुल, बोलो ना अनु। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स 2 होगा राइट। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिक्सचर में 3 है, तो मैंने 3 into 2 कर दिया बस। नहीं, आपने ये कैसे निकाला कि टोटल कार्बन एटम्स 3 होंगे? मिक्सचर में सिर्फ 2 गैसेस है ना? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ये अज्यूम कर लिया ना कि आपने टोटल मोल्स 2 निकाला, वो सही है। ठीक है, टोटल मोल्स आपने 2 निकाला, बट उसके बाद आपने क्या बोल दिया कि 1 मोल CH4 है एंड 1 मोल C2H6 है। ये गड़बड़ हो गया। ये कैसे बताया आपने? ये कैसे अज्यूम कर लिया? बस। ठीक है, सो नाउ ठीक है, now that you have spent some time on this, understand and learn the approach of how I'm going to solve this question, because now this is the kind of question that I was talking about, that you read the question and it may not strike to you that how should I solve this. ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हाँ सानिध्य, आपका आंसर सही है। सो इसमें what you will have to do is you will have to understand the approach towards solving problems. So अब अगर यहाँ पर आप नोटिस करना, मुझसे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा पता है कि यार अगर मुझे मोल्स मिल गए किसी तरीके से, ठीक है, तो फिर मैं ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला पार्ट फिगर आउट कर लूंगा लॉजिक से। ठीक है, right? So it comes to my mind that if I figure out the moles, then I can by logic get the carbon atoms. So what I'll do is I'll take this as my starting step. ठीक है, let the moles of methane be equal to X and let the moles of ethane be Y. ठीक है, इस तरीके से ही रहेगा। अब दो वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, सो टू सॉल्व दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, to solve these two variables we need two equation. कैसे कैसे आएंगे वो इक्वेशन, यहाँ पे देखना। एक तो टोटल मोल्स रहेगा, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा x प्लस वाई, एंड वो कितना होगा 44.8 अपॉन 22.4, दैट इज 2। तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, टोटल मास का। टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना 16x प्लस 30y, राइट? क्योंकि अगर x मोल्स हैं
तो ये मास ऑफ मीथेन आ जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड उसी तरीके से if I multiply the moles of ethane into its molecular weight, that is 30, I should get 53 as the answer. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है, if you will solve 1 and 2, you will get x to be equal to 1 by 2 and y to be equal to 3 by 2. ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, तो अब इससे अब आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स फिगर आउट कर सकते हो. कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, CH4 में कितना होता है? CH4 के एक मोल के अंदर 1 मोल कार्बन आइटम होगा, है ना? मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन आइटम रहेगा, राइट? तो 1 मोल और यू कैन से हाफ मोल CH4 में कितना कार्बन आइटम रहेगा? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये भी हाफ. वैसे ही C2H6 में आप बोलोगे कि 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आइटम्स हैं? देयर आर 2 कार्बन आइटम्स. तो अगर 3/2 मोल्स है तो उसमें कितना कार्बन आइटम रहेगा, कितने मोल्स ऑफ कार्बन आइटम रहेगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3. ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा, total moles of carbon atom, I will get 0.5 plus 3, that is 3.5. बट मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पूछे हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स विल बी 3.5 into Na. दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर वुड बी. ठीक है, लेट मी जूम आउट so that you are able to now see it clearly and completely. देखो अभी समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट हो तो पूछो. हाँ, वो जो असाइनमेंट मैंने भेजा था उसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा. ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है. यू नो आप डेफिनेटली टाइम स्पेंड करना. ठीक है, आपके पास ठीक है कल का ही दिन है. ठीक है, कल का दिन और आने वाला दिन है. तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया है इट शुड टेक मतलब अराउंड 2 hours ऑफ योर टाइम. ठीक है, मोस्ट लाइकली इन 2 hours वो काम हो जाना चाहिए आपका. And once it is done, then I would advise ki you should then definitely discuss those doubts in the coming class. ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज कर देते हैं. And then we'll meet day after tomorrow. Okay, thank you guys.